وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف حال؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ما اسمو کا یا اخی؟ جی بتائیے، اور یہ بچوں سے کیا بات کر رہے تھے آپ؟ انا اکلم. ما اسمو کا یا اخی؟ هل تتکلم باللغة العربیہ؟ اردو میں بات کریے، اردو میں. ٹھیک ہے، لا تعلم باللغة العربیہ یا اخی؟ اردو میں بات کریے، وہ بچوں کو تھوڑا ضروری ہے نا. یعنی آپ کو عربی ہاں نہیں آتی. ہاں. تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے اسم گرامی؟ میرا نام محمد ابوالکلام. ابوالکلام. آپ دلی سے ہیں؟ میں ممبئی سے. جی فرمائیے، کس مکتبہ فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں حضرت؟ اہل سنت والجماع. اچھا، خصوصاً خصوصاً مطلب کیونکہ تینوں کانٹیننٹ جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل ہم حدیث. ہم ہم اہل سنت کو ہی ہوں. مسلمان سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو ہاں. ہم اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں. یعنی اسلام سے خارج ہم سمجھتے ہیں. ہاں، ان کے کفری عقائد کی بنیاد پر. کسے کسے؟ اس لیے ہم جب اہل سنت کہیں گے تو ہمارا اس سے مطلب ہوگا اہل سنت. اہل سنت وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات جو موجودہ دور میں جن کی تعلیمات اور کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، اس کی روشنی میں اہل ہم ان کو ہی سنت سمجھتے ہیں. والجماعت کو آپ مراد مانتے ہیں موجودہ دور میں احمد رضا خان صاحب کو ماننے والے، ان کی تعلیمات ہاں کو ماننے والے. تو احمد رضا ہاں خان صاحب کا وجود تو ابھی 100-150 سال پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے اہل سنت والجماعت موجود تھی نا؟ ہاں. تب کیا کہلائی تو جاتی تھی وہ؟ میں اس کے لیے تو بول رہا ہوں، موجودہ دور میں جس کی تعلیمات و تشریحات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، ہم اس نقطۂ نظر سے بات کریں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کون ہاں، تھے؟ اس کا نام تو ہوگا نا کوئی جماعت کا. اہل سنت. اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں اہل سنت ہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ احمد رضا خان صاحب کی طرف نسبت کرنی پڑی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں نا، آپ اس میں اور لوگوں کو شامل کر رہے ہیں نا. اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیوبندی خصوصاً کون بولتے سی ہیں. ہے. تو خصوصاً تو آپ نے ابھی کیا نا اعلی حضرت کو ماننے ہاں والے، تو اس سے ہاں پہلے اہل ہاں. حدیث جماعت موجود تھی. ہم تو کسی بھی غیر اہل سنت کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہاں تو اہل اہل حدیث کو تو حدیث سمجھتے ہوں، ہیں نا. دیوبندی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے کفری عقائد کی بنیاد پر، ارے عوام اللہ نہیں. کے بندے، اہل السنہ والجماعت احمد رضا خان صاحب سے پہلے اہل حدیث جماعت موجود تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. یہ تو نہیں تھی. انگریزوں کی پیداوار ہے. 1856 ٹھیک ہے، اب میں اس کی کے وضاحت کر بعد یہ دوں. پیدا ہوئی. امام ہاں ترمذی رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ سمیعت محمد بن اسماعیل یقول فذکر اللہ ھذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. وہ اس سے محدثین کی مکمل کر جماعت لو، مراد ہے. مکمل کر لو، مکمل کر لو. نہیں میں سمجھ، نہیں وقت میرے مجھے پاس آپ اتنا نہیں بولنے رہتا. نہیں دے رہے، مفتی صاحب خائف کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں سنیے میری بات. میرا وقت ہے نا، آپ میرے وقت میں کیوں بول رہے ہیں؟ اہل الحدیث سے مراد یہ جوتا سینے والا جو آج کا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے لفظ بھاجی استعمال بیچنے کیا، والا نہیں ہے. اسی میں نے لفظ استعمال کیا احمد رضا خان ہاں. صاحب سے پہلے اہل حدیث جو جماعت موجود تھی. میں نے اس سے مطلق بولا تھا، محدثین کی میں نے جماعت مراد مطلق ہے. بولا تھا، میں نے تخصیص نہیں محدثین کی کی تھی. جماعت مراد ہے. میں ہاں. پوچھ رہا ہوں، میں نے یہ مطلق غیر بولا تھا. مقلد، آپ غیر مقلد کہیے، ارے غیر اللہ مقلد. کے بندے، میں نے اس اور لفظ میں یہ بولا. عادل بھائی ان سے غیر کہیے بات سنے نا، ایسے بات کریں گے. ہاں ایک منٹ غیر سنو غیر مقلد ارے کہیے. اتنے خائف ہیلو ہو گئے ابھی سے. ہیلو 2 منٹ کا ہاں وقت رکھ لو نا، بیچ میں مت بولو نا. بول رہے تو پہلے رک جاؤ، تب سنو اس کے بعد، بات سننے کے بعد بات کرو. ٹھیک ہے ہاں. بولیے. تو نہیں جس چیز کو میں سمجھ گیا کہ آپ جو حدیث میں یا مفسرین کی کتابوں میں جو اہل الحدیث آیا ہے اس سے مراد ارے میں محدثین کی وہ ثابت جماعت کروں ہے. گا نا، میں ثابت کروں گا کون مراد ہے کون نہیں ہے. آپ غیر آپ کیوں بول مقلد رہے ہیں، ہیں؟ غیر آپ مجھے مقلد آپ بولنے ہیں. کا خود موقع کو دیں، اتنے خائف کیوں ہیں آپ؟ ابھی تو شروعات ہے جناب. رجب ایک منٹ رک جائیے، آپ رک جائیے. میں کہہ رہا ہوں بولنے دیجیے ان کو، آپ بولنے دیجیے. چلیے رجب بھائی بولیے. ہاں میں بولوں عادل بھائی؟ آپ غیر مقلد ہیں. آپ غیر مقلد کے حساب سے بات کریے. چلیے ٹھیک. جی. ہم
अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैंने इनसे ये कहा था कि अहमद रजा खान साहब से पहले अहले हदीस जमात मौजूद थी या नहीं। इन्होंने कहा कोई मौजूद नहीं था। मैंने तो ये नहीं कहा आज के अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद, मैंने लफ्ज़ मुतलक अहले हदीस कहा। तो इन्होंने कहा कि कोई भी अहले हदीस मौजूद नहीं था। अगर मुहद्दिसीन को ही ये मुराद ले लें तो ये साबित हुआ ना कि अहले सुन्ना वल जमात के अंदर मुहद्दिसीन अहले हदीस मौजूद थे। तो इन्होंने तो मुतलक इनकार कर दिया था कि अहले हदीस मौजूद ही नहीं। अरे सुन लीजिए जनाब, क्या यार इतने डर रहे हैं अभी तो शुरुआत है, मेरा वक्त है जनाब। देखिए, अगर ये मुहद्दिसीन किराम को ही मुराद ले रहे हैं तो मेरा दावा तो फिर भी साबित हो गया कि अहमद रजा खान साहब से पहले अहले सुन्नत वल जमात कहलवाने वाले मुहद्दिसीन अहले हदीस मौजूद थे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक तायुन जो किया है कि मुहद्दिस को ही सिर्फ अहले हदीस कहा जाएगा, इसकी दलील इनको देनी है। बल्कि मैं दिखाऊं, अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहलुल हदीस फहुवा यस्तमाउल हदीस, अहले हदीस वो है जो हदीसों पे अमल करता है। और मुहद्दिसीन की क़ीद नहीं लगाई यहाँ पर। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने भी कहा है कि अहले हदीस वो है जो हदीसों पे अमल करता है। इमाम अता बिन अबी रवा, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह, तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि अहले हदीस से मुराद है जो हदीसों पे अमल करते हैं। अब इन्होंने कहा कि खास मुहद्दिसीन के लिए तो एक हवाला पेश कर दो। आपका वक्त खत्म हुआ, आपका वक्त खत्म हुआ। ये बताइए, आप किसी एक मसले में किसी एक हदीस पे आप अमल करके बता भी नहीं सकते। अभी हमारी हदीसों पे बात नहीं होगी। आप 2 रकात नमाज ना आप कहते हैं ना, तो एक हदीस के मुताबिक आप पढ़ के बता नहीं सकते। एक मिनट, अच्छा टॉपिक पे बात कीजिए। चलिए हटाइए टॉपिक पे लाइए इनको। इनसे नहीं हो पाएगा, टॉपिक पे ले आइए इनको। चलिए वसीला बात करते जी, वसीला के ताल्लुक से अपना मुकम्मल मौक़िफ़ बताइए कि आप रसूलुल्लाह के वसीले को फ़र्ज़ मानते हैं, वाजिब मानते हैं, सुन्नत मानते हैं, मुबाह मानते हैं, मुस्तहसन मानते हैं, क्या मानते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीलों को हम सारे बुजुर्गान दीन का वसीला मानते हैं और कुरान में भी हुक्म इसका है। क्या मानते हैं पहले बताइए, क्या मानते हैं? मुस्तहब, वाजिब, फर्ज, सुन्नत, क्या मानते हैं? नहीं, बाद मौकों पे उसकी हैसियत बदल जाएगी। हाँ, उसी को वज़ाहत करेगा, इसलिए खास रसूलुल्लाह का कहा। हाँ, कहीं पे वाजिब होगा, कहीं पे मुस्तहब होगा, कहीं पे सुन्नत होगा, कहीं पे मुबाह होगा, कहीं पे जायज़ होगा। रसूलुल्लाह का वसीला कहाँ पर वाजिब है, कहाँ पर मुबाह है, कहाँ मुस्तहब है, इसकी वज़ाहत कर दें। नहीं, आप बताइए, आप वसीले को मानते हैं कि नहीं मानते? आप यहाँ वो इक़साम को छोड़ दीजिए। देखें, हमारी जो बहस होगी वो इख्तिलाफ पर ही होगी। मुतलक वसीले पर बहस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाज़ वसीले की अक़साम को हम मानते हैं और आप उसमें इख्तिलाफ नहीं करते। आपका और हमारा इख्तिलाफ तवस्सुल बिल अमवात के ताल्लुक से है, तो उसी पर हम बहस करेंगे। तो उसी पर मैं चाहता हूँ कि आप अपना वज़ाहत पेश कर दें। नहीं, हम तो मुतलक वसीले को जायज मानते हैं और उसके अगर कोई मुखालिफ है तो उसकी हैसियतें का तयन अपने वक्त और उसके हिसाब से होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुतलक वसीले को हम भी कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस के मुतलक वसीला जायज है, वाजिब भी है, लेकिन उसकी नीयत क्या है, इसलिए मैं खास किया हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेने की नीयत को तयन करे। वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, मुबाह है, मुस्तहसन है, इसको वाज़े करें आप, इसलिए खास किस में बताया। वो आपको जिस पे एतराज है उस पे बात करिए। हम तो सभी वसीलों के कायल हैं। हाँ, इसी वसीले का मैं इख्तिलाफ करता हूँ, तवस्सुल बिल अमवात का। हाँ, तो चलिए आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपना मौक़िफ़ पेश करें ना, मैं बताऊंगा फिर अल्लाह के रसूल के वसीले में क्या है। हम इसको जायज़ समझते हैं। खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक साहबी आते हैं आपकी कब्र अनवर पर और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब हयात थे तो हम आपका वसीला पकड़ते थे, और अब चूंकि आप दुनिया से पर्दा फरमा गया और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाला ये आयत पढ़ करके उन्होंने वसीला बनाया जी। और फिर नाम क्या था मुबारक से। अब यहाँ पर मैं किताब लेकर नहीं बैठा हूँ, समझ रहे हैं? किताब लेकर नहीं बैठा हूँ। आप इसका चाहे तो इनकार कर दें, फिर मैं उसका आपको दे दूंगा नाम को। अब नाम ये जानना जरूरी नहीं, इसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक है, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। आपको ये आप कह दीजिए गलत है तो उसका हम रेफरेंस देंगे आपको।
ठीक है, मैं वजाहत कर देता हूँ। 3 तरीक आते हैं। एक अबू हरब हलाली के नाम से रिवायत आती है, दूसरा हजरत अली के ताल्लुक से आती है, एक उतबी की हिकायत आती है, एक अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 लोगों से ये हदीस, ये तरीक बयान है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू के तहत। तो उसमें से कुछ सहाबी का आपने हवाला दिया है ताकि मैं उसी पर जो है हदीस का तफसीरा करूँ। मैं यहाँ पर ना किसी सहाबी को खास मुतय्यन नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे पास किताब है ही नहीं। हाँ, तो अब मैं कैसे तयन करूँ और किस पे जरा करूँ, क्योंकि 4 तरीके हैं, कौन सी पे जरा करूँ बताइए। आपको जिस पे जिरा करना है करिए। मैं तो ये इसको मुतलकन कहता हूँ कि जायज़ है, और किसी एक सहाबी ने भी अगर आके कब्र रसूल पर वसीला मांगा है तो हमारे लिए तो वो आप समझे नहीं मौलाना, मैं कह रहा हूँ कि ये हदीस अलग अलग वाक़ये से 4 सहाबा से साबित है। उन 4 सहाबा में कौन से सहाबा हैं? नहीं 10 सहाबी से हो या एक सहाबी से हो, ठीक है, मैं एक ही से रद्द कर देता हूँ। देखिए, इस हदीस के बारे में जो आपने बताई है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू के तहत जो आपने हदीस पढ़ी है, इसके अंदर एक रावी है जिसका नाम है कसीर बिन ज़ैद अल असलमी सदूकुन यख्ती। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी तहज़ीब में कहते हैं कि ये सदूक था और ख़ता किया करता था। इसी ताल्लुक से इमाम तहज़ीब के अंदर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने, और दीवान ज़ोफ़ा के अंदर इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि इसकी सनद में कसीर बिन ज़ैद को इमाम नसाई रहीमहुल्लाह ने कहा है कि कसीर बिन ज़ैद ज़ाफ़हुन नसाई व गैरा। इमाम नसाई ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। पहली तो इल्लत इसमें यह है कि जो आपने सनद पढ़ी है उसके अंदर कसीर बिन ज़ैद जो है वो रावी जो है वो ज़ईफ़ है। दूसरा, इसके अंदर एक और रावी, मुकम्मल कर लूँ, दूसरा इसके अंदर एक और रावी है जिसका नाम है दाऊद बिन सलाह। दाऊद बिन सलाह जो है ये मजहूल है, इसकी तौसीक आप पेश करेंगे। तीसरा जो रावी है इसके अंदर मरवान बिन हकम, जो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान कर रहे हैं, उनसे मुलाकात और समा आपको साबित करनी है, वरना तो रिवायत मुनक़ता भी है। जी फरमाइए। मैं कह रहा हूँ ये ज़ईफ़ हदीस का होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हदीस ही नहीं है। आप अक्सर गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को मौजूदा दौर में अहले हदीस कहलाते हैं, वो उनके अकीदे से जो भी हदीस टकराती है उसको ज़ईफ़ कह देते हैं, और बाद हदीसों को तो वो हज़फ ही कर देते हैं। तो ये आप लोगों की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जो आपके ये गुमराह कुन अकायद से जो टकराती है उसको आप ज़ईफ़ कह देंगे। तो ज़ईफ़ होने का मतलब ये होता है कि वो हदीस नहीं है, ये नहीं होता है। जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई। हाँ, देखें, इन्होंने पहली बात ये कहा, कुरान में सुनिए, और हम इसको ना सुनिए, वसीले को हम हदीसों से नहीं, हम तो कुरान से भी साबित करते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये तो कुरान की नस्स है। और आप देखिए, मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ करके आपको बताया, ये 6ठे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब आप एक दलील मुझको इस तरह की दीजिए कि कुरान में किसी भी तरीके के वसीले को मना किया गया। ये एक आयत मुझको पढ़ के बता दीजिए, पहले कुरान पे बात हो जाए फिर हदीस पे आते हैं। हाँ देखें, पहली बात इन्होंने आदिल भाई एक बात कही कि जो इनके गुमराह कुन नजरियात और अकायद के खिलाफ होती है उसको ये ज़ईफ़ कह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हदीस ज़ईफ़ मतलब हदीस ही नहीं। हम मानते हैं मनगढ़ंत जो हदीस होती है वो भी हदीस ही कहलाई जाती है, लेकिन वो मनगढ़ंत होती है, उस पर अमल नहीं होता। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक कंप्लीट भाई सुन लीजिए यार, आप इतना कायद क्यों हैं? मनगढ़ंत हदीसों को ज़ईफ़ नहीं कहते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रहे। मैंने कब कहा कि मनगढ़ंत हदीसों को हदीस कहते हैं? अरे जो सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं वो उनको गलत तो मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए मैं ये नहीं सुनिए, आप देखिए, सुनिए शायद मैं आपसे ये आदिल भाई ये हदीस से भाग रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। बच्चों को सुनाऊंगा ना, कुरान पे आता हूँ मैं, कुरान पे आता हूँ जो आपने आयत पेश की इंशाअल्लाह। आप कह दें, हाँ मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप कह दें कि ये हदीस जो आप पेश किए थे इसका आपको इल्म नहीं था, फिर मैं कुरान पे आता हूँ।
हाँ। क्योंकि ये अकाइद जो है मैंने नहीं इब्ने हजर से पेश किया, इमाम ज़हाबी से, तो सबसे पहले फतवा इन दोनों पे लगाइए। मैं मुतलकन खैर मुकल्लिदीन को कहा हूँ कि इनके अकायद नज़रियात से तो इब्ने हजर और इमाम ये ज़हाबी जो हैं ये सारे के सारे और इमाम नसाई और मुकल्लिद हैं। नहीं, इमाम ज़हाबी और इब्ने हजर को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के तो ज़ईफ तो इन्होंने कहा है ना भाई, इन्होंने तो ज़ईफ कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मोहम्मद रज़ा सल्फ़ी ने ज़ईफ कहा है, इन तीनों ने ज़ईफ कहा है। ज़ईफ कह देने से हदीस नहीं है, ये नहीं होता है। अरे तो भाई किनकार को हम यही तो हम कह रहे हैं कि मौजू हदीस जो होती है वो भी हदीसों में मौजूद होती है, लेकिन वो मौजू पे अमल नहीं होता। अब उसी तरीके से ये इतने डर रहे हैं आदिल भाई, कितने डर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, मैंने कुरान पाक की सुनिए मेरी बात, एक मिनट आपको बात करना है ना तो 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर इन्हें सुनाना है, अगर इन्हें सुनाना है तो भाई हम तकरीर नहीं सुनते। आपको मैंने 2 मिनट 3 मिनट सुनाया, आप मुझे सुनिए तवज्जो से, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप कुरान की एक आयत मुझको पढ़कर बता दें जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया वही पहले हदीस को तो मैं वजाहत कर दूं, कुरान का आता हूँ ना मैं। भाई आपने जो हदीस पेश की है कि इल्जाम हमें अहले हदीस पे लगाया है कि इनके अकीदे के खिलाफ, मैं कहता हूँ हमारे अकीदे के खिलाफ जो है इब्ने हजर थे, आपके अकीदे के खिलाफ इमाम नसाई थे, आपके अकीदे के खिलाफ इमाम ज़हाबी थे, इन तीनों ने ज़ईफ कहा है, अहले हदीस ने नहीं कहा। नहीं सुनिए, पहले हम हदीस पे बात नहीं करेंगे, कुरान पे बात करेंगे। कुरान से एक आयत मुझको पढ़कर बता दीजिए जिसमें पढ़ी क्यों थी आपने? आपने जसारत क्यों की पहले कुरान से पहले हदीस पेश करने की? जसारत क्यों किया? मैं आपको नहीं जसारत में आपको कह रहा हूँ, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा। आपने पढ़ी ना भाई, आप पहले पढ़ते ना इस आयत को, आपने हदीस क्यों पढ़ी फिर? आप खुद पहले हदीस पे आए थे, मैं थोड़ी आया हूँ हदीस पे। आप बोले हदीस का इल्म नहीं है, उसके बाद आगे कुरान पे बात होगी। नहीं, कुरान से मैंने देखिए, अभी हदीस पे आएंगे तो मौजू है, ज़ईफ है, हसन है, और उसमें वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कुरान हदीस से पहले है कि बाद में? अरे भाई मैं बच्चों से नहीं, मैं मुफ्ती से बात कर रहा हूँ जनाब। नहीं मुझे आपसे बात करनी है, आवाम बेवकूफ नहीं है, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं कि हदीस पेश करके भाग रहे हैं आपके मौलाना। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। कुरान पहले है कि हदीस पहले है? तो आपने क्यों पेश की हदीस भी पहले? नहीं, मैं आ गई ना, कुरान पे आइए ना, कुरान पे आइए, हदीस पहले करते ना उसको। नहीं, ठीक है, मैं हदीस पे बात करूंगा बाद में। पहले आप कुरान की एक आयत पहले आपने ही तो पेश की है, मैंने की है वो हदीस। कौन सी? अरे हदीस पहले आप लेके आए, मैं लेके आया हूँ। मैंने कुरान ही पढ़ा है। मतलब ये है कि तुम अच्छा ये बता दो कि कुरान में कोई आयत है तुम्हारे नजदीक ऐसी जिससे अब आते हैं आपकी आयत की तरफ। पहले आप बताइए, रसूलुल्लाह का वसीला लेना आपके नजदीक मुस्तहब है या फर्ज है? हम इसको बाद सूरतों में मुस्तहब भी जानते हैं, बाद में फर्ज भी समझते हैं। अभी जो आप मुझसे बहस कर रहे हैं वो इस सूरत में क्या मानते हैं आप, फर्ज या मुस्तहब? ये तो कुरान की नफ्स से साबित है ना। तो क्या है फर्ज? ये तो कुरान की नफ्स से साबित है भाई। क्या है बताइए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ वसीला लेना क्या है बताइए फर्ज है ना। हम इसको जायज समझते हैं, मुस्तहब समझते हैं, बात सूरतों में माशाअल्लाह बस ये साबित हो गया कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना इनका मुस्तहब है। तो आयत तो फेले अम्र की पेश कर रहे हैं आप, और फेले अम्र वजूब पर दलालत कर रहा है यहाँ पर, तो मुस्तहब कैसे हो गया? तो वाजिब हो गया। कुरान की नफ्स से वसीला लेना जायज? अरे आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना मुस्तहब है, लेकिन आयत जो आप पेश किए हैं इस्तेदलाल के तौर पर, तो वो फेले अम्र आ रहा है और फेले अम्र वाजिबियत पर दलालत कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ जी। तो ये तो वाजिब होना, आपने मुस्तहब क्यों कहा? नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो देखिए बच्चों के फार्म के एतबार से बात कर रहा हूँ, तो उनको समझ में आना चाहिए, आप उलझाइए मत। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं आप। वजूब को भी जो वाजिब होगा वो जायज भी होगा, मुस्तहब भी होगा। अच्छा, वजूब जो है वो जायज भी होगा, मुस्तहब भी होगा। यानी इनके नजदीक नमाज जो है जो वाजिब है, इनके नजदीक मुस्तहब भी है और जायज भी है। अरे भाई अगर कोई नमाज, अब मुझे मुस्तहब की तारीफ कर दे, क्या है? मुस्तहब की तारीफ कर देना आप वसीले से बात नहीं, पहले मुस्तहब की तारीफ कर दें। नहीं आप कुरान की एक आयत मुझको बताइए। क्योंकि आपने कहा कि बाज मकाम पर जो वाजिब होगा वो मुस्तहब होगा, तो वाजिब मुस्तहब कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग हुक्म है ना ये। हाँ चलिए, नहीं कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा है जिससे ये साबित होता है कि वसीला लेना जायज है,
नहीं, और आपने कहा कि आयत- मुस्तहब है और मुस्तहब के तहत आप वाजिब की आयत पेश कर रहे हैं, अपना इस्तेदलाल बातिल कर दिया। नहीं, आप कुरान की एक आयत मुझको पढ़ कर बताइए जिसमें वसीले से मना किया गया। इसमें कहाँ है रसूलुल्लाह का नाम? दिखाइए ना कि तवस्सुल बिल अमवात यहाँ से साबित होता हो। हाँ दिखाइए। या जो लदना अमर तो नहीं, हाँ, आप ये तो मुतलक है ना, ये तो मुतलक है ना आयत, और मुतलक के हम कह दिए कि हम कायल है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस दिखाइए जरा, अच्छा दिखाइए तो आप रसूलुल्लाह की इससे- तखसीस नहीं, हाँ, हम तफसील दिखा देंगे। दिखाइए, कहाँ इस आयत के अंदर हाँ, तखसीस दिखा- रसूलुल्लाह की? अच्छा ये बताइए वसीला किस चीज को बनाया जाता है? अरे अल्लाह के बंदे, पहले तखसीस तो दिखाइए। जिस ताल्लुक से हम नहीं, बहस कर रहे हैं रसूलुल्लाह के, जो इस दुनिया से चले गए, उनका हम वसीला अल्लाह- लेने पे आपने आयत पेश की, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नबी की जात दिखाइए ना कि मुराद है किसी हदीस से। नहीं, आप ये बताइए, हमने कुरान की आयत पढ़ा ना, आप एक आयत ऐसी हमको बता दीजिए जिसमें वसीले से मुतलकन मना किया गया है। कुरान तो मौलाना हम मान रहे हैं, हमने कहा ना ये तो मुतलक बात हुई है, इसके अंदर रसूलुल्लाह कहाँ है वो दिखाइए ना। ये दिखा दीजिए, आप ये दिखा दीजिए। नहीं तो ये आप वसीला मानते हैं नहीं मानते? अरे वसीला मुतलक है ना, यहाँ पे तखसीस कहाँ है वो दिखाइए ना। मुतलक के तो हम कह दिए शुरू से कि हम मुतलक के कायल है वसीले के। हाँ, तो आप मुतलक के कायल है, तो आप इससे क्या, किस चीज को वसीला आप बनाएंगे बताइए? देखिए, उस पर बहस नहीं है, बहस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इख्तिलाफ है आपके मेरे नजदीक, तो उस पर बात हो जाए ना। तो आपने रसूलुल्लाह की जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके ताल्लुक से आयत पढ़ी है ना, तो आप दिखाइए रसूलुल्लाह यहाँ मुराद है। हाँ दिखाएं। मुराद अरे वसीलों में सबसे बड़े वसीला तो हमारे सरकार कयास नहीं, दलील पेश करें, कुरान पे दलील पेश करें। अच्छा ये बताइए, अल्लाह की बारगाह में वसीला किस चीज को बनाया जाता है? बहस ही इस चीज के लिए हो रही है आपसे कि यहाँ रसूलुल्लाह को साबित तो करें। हाँ जी जी। चलिए आप बताइए ये कि वसीला किस चीज को आप बनाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने नबी अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं उनके वसीले पर दलील बनाई है, तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम का नाम या जात दिखाइए कि मुराद है इस आयत में। जी जी दिखाइए दिखाइए। देखिए, या आप कह दे आपके पास नहीं है, फिर मैं दिखाऊं मुफस्सिरीन से क्या मुराद है। सिंगल बोला मुझे ना कभी एक लोग बोले। आप कुरान की एक आयत मैंने पढ़ के बताया वसीले के इस बात में, ठीक है? आप एक आयत मुझको बताइए कि वसीले से मना किया। देखें मौलाना, हम इस वसीले को हमने कहा मानते ही, यहाँ पर मुतलक बात हुई है। मेरी बहस आपसे यह है कि रसूलुल्लाह और तवस्सुल बिल अमवात पे आपको दलील देनी है, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, उसका वसीले की दलील कैसे बनेगी? मैंने बताया वाला वो तो दूसरी, वो तो सूरह निसा की आयत है ना। हाँ, तो ये तो सूरह माइदा की आप पढ़ रहे हैं, छठे पारे की, अभी आप वहाँ चले गए। इस आयत में पहले आप कह रहे थे कि कुरान पाइए, आदिल भाई इन्होंने कहा पहले कुरान पाइए, अब कुरान से आया ना, कुरान पे तो दूसरी आयत पे भागने लगे। कहाँ छलांग मार रहे हैं? नहीं, भागने नहीं लगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं पहले ही बताया था। चलो और आसान कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, ये आयत नबी पे नाजिल हुई थी ना, तो नबी ने किसको मुराद लिया था इस आयत में? जिंदा थे नहीं, ये अहमद मौलाना, यही तुम लोगों की बदअकीदगी है कि जिंदा थे। अभी देखे हयातुल नबी पे ना जाइए जनाब, ना मैंने मुर्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कुछ, अभी ना जाइए उधर। आप बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी के वही नाजिल हो रही थी रसूलुल्लाह पर, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मुराद लिया, वसीला किसका लिया? देखा अब ये अवाम को गुमराह करेंगे। अरे भाई इधर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत नाजिल हुई थी तो किसको मुराद लिए थे वसीले में? ये इतना बात बता दीजिए मुफ्ती साहब। एक आयत मुझको बता दीजिए, मैं बताऊंगा वो भी। यही आयत आपने जो पेश की वही मैं बता रहा हूँ। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये नाजिल हुई थी, नबी तो कुरान पे अमल पहले करेंगे ना, तो कहाँ नबी ने इसको किसको मुराद लिया था बताइए? खुद को मुराद लिया था, खुद को मुराद लिया था। नबी किसको बदलेंगे? यही तो तुम लोगों की बदबख्ती है, यही तो तुम लोगों की देखिए अब उधर उधर भाग रहे। हम कह रहे हैं कि जब ये नाज़िल कुरान की आयत नबी पे हुई है, तो नबी ने इस आयत पे अमल करते हुए किसका वसीला लिया था? अरे भाई, नबी किसको वसीला बनाएंगे? आदमी वसीला किसको बनाता है? जो फिर आयत पे अमल नहीं था यानी नबी का? सुनो मेरी बात, यही तो तुम लोगों की गुमराही है ना। किस आयतों का हुक्म किस पे है यही तुमको पता नहीं। अरे इस आयत में कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, तो क्या नबी अल्लाह से नहीं डरते? भाई अल्लाह से नबी अल्लाह से डरते थे या नहीं?
नहीं हर नहीं करते थे। हर आयत का हुक्म अलग अलग लोगों से। अरे आदिल भाई मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ इत्तकुल्लाह के अंदर नबी मुराद है या नहीं, अल्लाह से डरने पे नबी मुराद होंगे या नहीं? हाँ मुफ्ती साहब आप देखिए, वसीले पे बात कर रहा हूँ ना, ये एक आयत मुझको बताओ तुम। आपने मुस्तस्ना किया है, आपने मुस्तस्ना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत से। मैं कहता हूँ नबी अल्लाह से डरते थे या नहीं? वसीले वाली बात बताओ, बाद में बात अरे करेंगे। इसी आयत में ये जिक्र पहले तो यही है ना, इत्तकुल्लाह फिर है वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते भी थे अल्लाह से, तो वाज़ेह हो गया ना कि नबी भी मुराद है इस आयत में। वसीला नहीं है। चले आदिल भाई हो गई खत्म इनकी बस, नहीं, मीटिंग में आ जाइए, ठीक है। बात की एक आयत का